Good morning, students. Welcome back to the online sessions of Science Class 10. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation. So, I requested to you just don't go outside your homes. Also, avoid to go into the crowded places. Wear a mask when you go outside your homes. Always wash your hand as a specific time of interval up to 20 seconds. Stay home, stay safe. Students, we're discussing about in the previous lecture, chapter number 4, that is carbon and its compound, in which we're discussing about some of the properties of the carbon, in which why carbon is important, why it is a backbone of biology, what is its natures of covalent bond, ionic bond, tetravalency of carbon, catenation properties. Is also we're discussing about its importance in the different formations of converting into that form. Now, on the today's onwards lectures, we're discussing more ahead about the carbon's formation. So, in which we're discussing first of all saturated and unsaturated carbonic compounds. First of all, we know about the carbon. Its atomic number is 6. So, it having a 2 orbits in first cell K, it having a 2 electron, while in a L, it having the 4 electrons. So if you are discussing about the structural forms of between 1 and 2 carbons, how it can be generally implemented. So see here how the carbon atom that can be implemented. So one said, so if you see here, I just make a sign here so you can be easily understandable which are the formations that we have used. So if you see that K here where I put out the round here, it having a 1 electrons that can be shared. So that is generally called as a one-sad pair of electron between the two carbon atoms. Okay, so that why we implementation how we can be joined to each other. So hydrocarbonic compound, it is one of the hydrocarbonic compound. So structural formula, if we consider about that carbon and hydrogen, when that it can be joined to each other and create a specific forms of molecules, it is a part of the hydrocarbonic compound. So the structural formula of simple carbon compound is written into the two steps. Now, in the first step, here you can see that the first step, the carbon atom is linked with another carbon atom with a single bond. Whichever you sign here, just I'll make a draw here, C dash C, right? So by using in the first step, carbon atom that can be joined with the another carbon atom with the single bond. That is the first step. Now, in the second step, the remaining valencies of a carbon are satisfied by the hydrogen atom. Remaining valency, it means the carbon, it having a valency C here, it having these three portions, and these are the three portions. These are having a carbon have a remaining valency that should be put out by the hydrogen. Here all the formations of the hydrogen that can be see here in the formations of the hydrogen. So, three valencies of each carbon atoms that remains unsatisfied, that should be remain unsatisfied. So each carbon is bonded to other 3 hydrogen atom. Each carbon is bonded with the 3 other hydrogen carbon. So it is generally a structural formula of a ethane, ETHAN, ethane, right? सो इस फॉर्मूला के अंदर अगर आप देखेंगे तो कार्बन कितने हैं 6 हैं, सॉरी 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं. तो ये जो फॉर्मेशंस बन रहा है इट इज कॉल्ड इथेन, ETHANE, इट इज अ फॉर्मेशंस ऑफ इथेन. 2 कार्बनिक फॉर्म में यहाँ पे इथेन जो है वो क्रिएट हो रहा है. अगर मान लीजिए इथीन बनाना है, ETHENE अगर मुझे फॉर्म क्रिएट करना है तो ENE फॉर्मेशंस के लिए ध्यान रखिएगा. तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथीन होता है वो C2H4 होता है, जबकि इथेन का C2H6 होता है, राइट. सो इथीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो अगर हमें वो फॉर्म करना है तो पहला स्टेप में तो कार्बन सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ेगा और उसके दोनों एंड जो होंगे वो हाइड्रोजन से जुड़ जाएंगे, यानी कि C2H4 हो जाएगा. लेकिन अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वैलेंसी जो है, जैसे यहाँ पे आप देखिए C2H4 हो रहा है, यहाँ पे राइट हैंड साइड फिगर आपको दिखिए स्टेप 2 के अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ फिगर में. पहला स्टेप में तो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, दूसरे स्टेप में कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, C2H4 इथीन बनता है. लेकिन ये जो इसके अंदर जो एक वैलेंसी है हर एक ईच कार्बन की, वो अनसेटिस्फाइड है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 3 के साथ जुड़ना चाहिए, यहाँ पे तो वो
दो ही के साथ जुड़ रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस कार्बन को यहाँ पे डबल बॉन्ड से जोड़ देना पड़ेगा। तो जैसे आप कार्बन को स्ट्रक्चरल बॉन्ड से जोड़ देंगे वो सेटिस्फाइड हो जाएगा उसके पेयर को। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला जो बनता है वो बनता है इथिन का, EATHEN, इथिन का स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे वो बन जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिखाया मैंने C2H4 का। तो ये जो पूरा जो सैड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दिख रहा है वो इथिन का बन रहा है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इथिन का होता है वो C2H4 होता है। दूसरा जो है वो इथाइन होता है, जो यहाँ पे दिया है आपको C2H2 का फॉर्मेशन, यहाँ पे इथाइन, जो मैं आपको यहाँ पे डॉट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि कौन सा मैं बोल रहा हूँ। ये जो दिया है C2H2 उसको हम इथाइन कहेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इथाइन का C2H2 होता है। तो अगर यहाँ पे आप कार्बन का और हाइड्रोजन को उसके साथ ज्वाइन करते हैं तो क्या हो जाता है, वो सिंगल फॉर्म या डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे दो ही हाइड्रोजन है। तो कार्बन को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको ट्रिपल बॉन्ड से उसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला बनता है ये पूरा आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के टर्म्स में उसको डिवाइड करता है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड क्या है, पहले आप समझिए सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड क्या है। तो स्पेसिफिकली जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग ओनली वन सिंगल बॉन्ड, कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक ही सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन के एटम के बीच में, वो हमेशा सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड होगा। इफ द कार्बन एटम विल जॉइन विद अदर मॉलिक्यूल्स हैविंग अ सिंगल बॉन्ड, इट ऑलवेज बी अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। और मान लीजिए अगर अनसैचुरेटेड मीन द कंपाउंड्स of a carbon having a double bond or maybe a triple bond between the carbon atoms are generally known as a unsaturated carbonic compound। उसको क्या कहेंगे, unsaturated carbonic compound कहेंगे। तो जो unsaturated carbonic compound होते हैं these are the more reactives than the saturated carbonic compound। उसके कंपैरिजन में जो unsaturated carbonic compound होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम उसके फॉर्मेशंस को डिवाइड कर सकते हैं। तो जो नेम कन्वर्जेशन होता है कि जो नेम्स है या जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज है या जो स्ट्रक्चर है, तो मान लीजिए पहले 6 कार्बन को अगर हम स्ट्रक्चरल डिवाइड करते हैं, अगर मान लीजिए 1 कार्बन हो तो मीथेन कहते हैं, 2 कार्बन हो तो आप उसको इथेन कहते हैं, 3 कार्बन हो तो प्रोपेन कहते हैं, 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन कहते हैं, 5 कार्बन हो तो पेंटेन कहते हैं, 6 कार्बन हो तो हेक्सेन कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग कार्बनिक कंपाउंड्स को आप उसमें यूज कर सकते हैं। और जितना कार्बन है उससे डबल +2 यानी कि CnH2n+2 उस फॉर्मेशंस में वो बनता है, वो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। ऑलवेज भी CnH2n+2 इस फॉर्मूला, C यानी कि कार्बन, N यानी नंबर ऑफ कार्बन, H फॉर द हाइड्रोजन, 2n यानी कि जितना नंबर ऑफ कार्बन है उससे ट्वाइस हाइड्रोजन +2 यानी कि CnH2n+2 का फॉर्मूला वहाँ पे बनता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक सब्सटेंस इसके लिए होता है। मान लीजिए 1 कार्बन है तो हाइड्रोजन 2 + 2 + 2 यानी 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। 2 कार्बन है तो 2 × 4 + 2 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। 3 कार्बन है तो 3 × 6 + 2 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। 4 कार्बन है तो 4 × 8 + 2 10 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये जो पूरा फॉर्मेशन बनता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होता है। अगर 1 कार्बन एक सब्सटेंस है तो मीथेन, 2 है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन। अकॉर्डिंग टू कितने नंबर ऑफ कार्बन आप यूज करते हैं उसके हिसाब से उसका नेमिंग कन्वर्जेशन जो वो चेंज हो जाता है। चलिए, यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है ये पूरा स्ट्रक्चरल फार्मूला। आप देखिए जो मीथेन है, मीथेन के लिए केमिकल फार्मूला है उसका CH4 यानी 1 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 कार्बन के साथ बाकी 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सैचुरेटेड है। इथेन C2H6, यहाँ पे भी आप देखिए 2 कार्बन है उसके साथ 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए। प्रोपेन 3 कार्बन, तीनों 3 सिंगल बॉन्ड उसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए रहेंगे। ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे नंबर ऑफ कार्बन जो उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो अभी जो हम पढ़ेंगे जिसमें चेन है, ब्रांचेस है, रिंग्स है, कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो कंपाउंड्स जो होते हैं कि कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ओनली 2 एलिमेंट्स ऑफ अ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। जो कंपाउंड्स के अंदर केवल 2 ही एलिमेंट होंगे, कार्बन और एक हाइड्रोजन, तो उसको आप हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड्स में 2 तरीके के कंपाउंड होते हैं, एक सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं और दूसरे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम अल्केन कहते हैं, अल्केन, ALKANE, पीछे Ne सफिक्स आता है जिसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसका जनरल फॉर्मूला अभी मैंने आपको समझाया, CnH2n+2 होता है। और जबकि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उसमें 2 सब्सटेंसेस आते हैं, अल्कीन और अल्काइन, ENE सफिक्स और YNE सफिक्स। इसमें कौन सा सफिक्स आएगा, ENE और YNE। तो
तो लास्ट में ENE और YNE सफिक्स होगा वो अनसेचुरेटेड है, और लास्ट में ANE सफिक्स आएगा वो सेचुरेटेड है, ध्यान रखिएगा। तो CnH2n+2 अल्केन ग्रुप का है, जिसमें इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लास्ट में ANE आता है। जबकि अल्किन ENE सफिक्स जो होता है उसका फॉर्मूला CnH2n होता है, CnH2n, इथीन, मिथीन, प्रोपिन, ENE। और YNE सफिक्स आता है, उसका फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, जिसमें हम मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, YNE सफिक्स आता है। तो जो अल्केन ग्रुप होता है ANE वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, अल्किन जो होता है ENE वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और YNE सफिक्स जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। तो ऐसे हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो जो अल्केन ग्रुप है, जिसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जिसके अंदर एक सिंगल बॉन्ड केवल एग्जिस्ट करता है, वो कार्बन और कार्बन एटम के बीच में, जिसको हम अल्केन कहते हैं, जैसे ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, दीज आर जनरली अ फॉर्म ऑफ अल्केन, CnH2n+2 ग्रुप का होता है। जबकि बाकी के जो दूसरे हैं अल्किन और अल्काइन ग्रुप था, अल्किन के अंदर जो कंपाउंड होता है वो कंटेन करता है एक से ज़्यादा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, जो ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन ऐसे फॉर्मेशन में आता है। और अल्काइन जो होता है, जो नेचर ऑफ होता है, उसमें कार्बन कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, जो आपका ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन ऐसे अलग अलग फॉर्मेशन में आप उसका नेमिंग कन्वर्जेशन कह सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन जो हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड जो है वो क्लासिफाइड होते हैं उनके बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे उसको हम डिवाइडेड करते हैं, जिसमें 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स में आप उसको डिवाइडेड करते हैं, जिसमें एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड आता है, एक ब्रांच चेन कंपाउंड आता है, और एक रिंग और साइक्लिक आता है। 3 आता है, एक स्ट्रेट चेन, एक ब्रांच चेन और एक साइक्लिक चेन। आप उसको ऐसे कह सकते हैं, साइक्लिक अरेंजमेंट। स्ट्रेट चेन जो कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन के अंदर जैसे अभी आप देखेंगे कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन का जो फॉर्मेशन है, ये जो आपको दिख रहा है फॉर्मेशंस के अंदर, ये जो पूरा फिगर जो दिया है इसमें, ये कंपाउंड मॉलिक्यूल ऑफ 2 स्ट्रक्चर विद द फॉर्मूला C4H10। C4H10 के यहाँ पे मैंने आपको 2 फॉर्मेशन दिए हैं। दोनों स्ट्रक्चर में आप देखिए कि दोनों के अंदर कार्बन 4 कार्बन, दोनों स्ट्रक्चर में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं, इसको आप आइसोमर्स कहते हैं। अगर इसी को अगर आपको कंपाउंड में इंक्रीज करना है तो आप इसको रिंग में या ऐसे अलग अलग फॉर्मेशन में इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेशन उसके अंदर होता है। जैसे स्ट्रेट चेन अगर मुझे लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ स्ट्रेट चेन के लिए, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे प्रोपेन का लिखना है, स्ट्रेट चेन में मुझे प्रोपेन लिखना है, तो प्रोपेन का आपको पता है कि केमिकल फॉर्मूला जो होगा वो C3H8 होगा, यानी कि मुझे 3 कार्बन की जरूरत होगी। तो ये स्ट्रेट चेन में 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, और उसके साथ मेरे को 8 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। आई नीड टू बी 8 हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो मैंने लाइनिंग की है वहाँ पे मुझे हाइड्रोजन अरेंज करना है, ईच एंड एवरी प्लेस आई हैव टू मेक अ हाइड्रोजन हियर, ईच एंड एवरी प्लेस, ठीक है। तो ये 8 हाइड्रोजन हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 कार्बन हो गए। तो ये 3 कार्बन के स्ट्रक्चर को आप प्रोपेन कहते हैं। ये जो हो गया प्रोपेन, ये स्ट्रेट चेन कहते हैं। ये जो पूरा फिगर बनता है उसको आप स्ट्रेट चेन कहते हैं। जितना नंबर ऑफ कार्बन आप बढ़ाएंगे उतना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये जो नॉमेनकल्चर का जो कंपाउंड्स के अंदर N जो रिप्रेजेंटेड होता है, N पेंटेन, N हेक्सेन, N ऑक्टेन, ऐसे N आपको आगे लिखना पड़ता है, वो N रिप्रेजेंटेशन, N फॉर द नॉर्मल, ऐसे हम उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मान लीजिए अगर स्ट्रेट चेन की जगह मुझे ब्रांच में कन्वर्ट करना है, ब्रांच के अंदर जैसे हम उसको इम्प्लीमेंटेशन कर, जैसे 4 कार्बनिक सब्सटेंसेस लेते हैं, 4 कार्बनिक सब्सटेंसेस में लेता हूँ, 1 2 3 और 4, ऐसे 4 कार्बन लिए, ये स्ट्रेट चेन है। अब इस स्ट्रेट चेन वाले 4 कार्बन को अगर मुझे ब्रांच में कन्वर्ट करना है, तो ब्रांच में कन्वर्ट करने के लिए मैं ऐसे उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, इट शुड बी इजीली कन्वर्टेड लाइक दिस। अब इसको ऐसे इजीली ब्रांच में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रांच कन्वर्जेशन ऐसे आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करके आप इजीली कर सकते हैं। तो ये जो आपको फिगर दिख रही है ना, ये सिंपल स्ट्रेट चेन है, और स्ट्रेट चेन ये जो दिख रहा है ये स्ट्रेट चेन है, और इसको इसने ब्रांच में कन्वर्ट किया हुआ है। तो इजीली आप किसी भी सब्सटेंसेस को स्ट्रेट चेन को ब्रांचेस में आप इजीली फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको रिंग्स में या बेंजीन के फॉर्म में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इजीली फॉर्मेशन ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे ये जो दिया है पूरा साइक्लिक फॉर्मेशन में आप उसको रिंग स्ट्रक्चर इसके अंदर कंप्लीट करते हैं। ये जो है वो कार्बन का स्केलेटॉन फॉर्मेशन दिया है, और कंप्लीट मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। ये कार्बन का सिंपल स्केलेटॉन है, और राइट हैंड साइड जो बी फिगर है वो कंप्लीट उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो ये डिफाइन करता है कि कैसे आप स्ट्रेट कार्बनिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ फॉर्मेशंस के अंदर।
चलिए नेक्स्ट जो दिया है, विल यू बी माई फ्रेंड। विल यू बी फ्री मतलब क्या? तो जो हाइड्रोकार्बनिक चेन जो हम देखते हैं कि जो स्पेसिफिकली जो हाइड्रोकार्बन चेन है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो रिप्लेस होते हैं, हाइड्रोजन को रिफर्ड करते हैं, उसको हम हेट्रा एटम कहते हैं, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। सो हाइड्रोकार्बनिक चेन के अंदर जो हाइड्रोजन एटम्स होता है उसको रिप्लेस करता है, उसको हेट्रो एटम कहते हैं कि इस तरह के जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हो उसको सेटिस्फाइड कर सके। जैसे यहाँ पे आपको दिया है कि हेट्रो एटम्स के अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन दो यहाँ पे फॉर्मेशन दी और क्लास ऑफ कंपाउंड्स में अलग अलग आपको दिए हैं। तो इसमें जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर के एलिमेंट्स इसका आप यूज़ कर सकते हो। हेलोजेनिक सब्सटेंस जिसको आप क्लोरीन या ब्रोमाइन के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हो, आप उसका यूज़ कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन को रिमूव करके आप उसका यूज़ कर सकते हो। उसको आप दूसरे भाषा में फंक्शनल ग्रुप भी कहते हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है कि जैसे एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच जनरली इम्पार्ट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप। उसको आप फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो chemical reactions of different organic compounds that containing the different functional groups and different properties। तो जो फ्री वैलेंसी होती है और वैलेंसी ऑफ ग्रुप उसको आप सिंगल लाइन से ज्वाइन करते हो। जैसे यहाँ पे अलग अलग आपको दिया है कि क्लास ऑफ कंपाउंड हेलोजेनिक जिसमें क्लोरीन और ब्रोमाइन का फॉर्मेशन है, जिसमें डैश Cl डैश Br का आप यूज़ कर सकते हो। अल्कोहलिक ग्रुप है तो आप डैश OH का यूज़ कर सकते हो। एल्डिहाइड ग्रुप है तो डैश C डबल बॉन्ड O विथ सिंगल बॉन्ड H का यूज़ कर सकते हो। कीटोन ग्रुप है और कार्बोजिलिक ग्रुप है। इस ग्रुप का आप यूज़ करके उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो और अलग अलग मॉलिकुलर कंपाउंड जो है हाइड्रोजन के इंस्टेड ऑफ यहाँ पे बना सकते हो। तो उसी में एक है वर्ड जिसको हम होमोलॉजियस सीरीज कहते हैं। तो सीरीज ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सक्सेशंस विद द विच डिफर विद द डिफाइनाइट ग्रुप और लाइक डैश CH2 डैश इज कॉल्ड होमोलॉजियस सीरीज। अलग अलग ग्रुप्स के साथ बनेगा कि उसको होमोलॉजियस सीरीज कहते हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस CH2 मिलेगा आपको। ईच एंड एवरी कंपाउंड जैसे CH3OH है, C2H5OH, इनका आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो हमेशा डिफरेंस आपको CH2 मिलेगा। दैट इज कॉल्ड होमोलॉजियस सीरीज। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो होमोलॉजियस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, ईच मेंबर ऑफ द होमोलॉजियस सीरीज आर कंटेन सम एलिमेंट्स एंड अ फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो होमोलॉजियस सीरीज है, होमोलॉजियस सीरीज के अंदर जो भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे ईच मेंबर ऑफ अ होमोलॉजियस सीरीज कंटेन सेम एलिमेंट्स एंड द फंक्शनल ग्रुप। So each member of this homogeneous series can be expressed into the general molecular formulas like each member of alkane series can be represented CnH2n+2 के साथ, और while difference between these two molecular formula of successive members always be CH2. So there is a difference between 14 unified mass जिसको small u कहते हैं, इनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो 14 यूनिफाइड मॉलिकुलर मास जो दो सक्सेसिव नंबर के बीच में होता है। एंड द सेम नंबर ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स इज अप्लाइड टू ईच मेंबर ऑफ सीरीज। हर एक मेंबर इसके अंदर इस तरह के सीरीज का यूज होता है। ईच मेंबर ऑफ अ होमोलॉजियस सीरीज कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप एंड गिव सेम केमिकल रिएक्शन। तो ये जो मॉलिकुलर मास होता है हर एक मेंबर का सीरीज के अंदर इंक्रीज होता है ड्यू टू द एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जितना आप कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स को इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा इसका जो एटॉमिक मास का फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीजेस होता है। सो दैट इज़ अबाउट द होमोलॉजियस सीरीज। यहाँ पे आप देखिए कि ये दो फॉर्मेशन दिए है कि CH4 एंड C2H6 यहाँ पे आपको बुक में दिख रहा है। तो दिस डिफर्ड बाय डैश CH2। इसका अगर आप C2H6 और CH4 दोनों आपका जो अल्केन सीरीज है CnH2n+2 का फॉर्मेशन है, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको CH2 ही मिलेगा। उसी तरह C2H6 C3H8 इसका डिफरेंस भी आपको CH2 के फॉर्मेशन में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन को आप इंक्रीज करते जाएंगे उतने ज़्यादा आपका हाइड्रोजन वहाँ पे होमोलॉजियस सीरीज के अंदर इंक्रीजेस होता जाता है। चलिए अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉमेनकल्चर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि कैसे हम उसको पढ़ सकते हैं। कार्बन है तो कितना उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसको रीड कर सकते हैं। 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, अप टू 10 कार्बन तक अगर है तो उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे हेलोजेनियस ग्रुप में उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जो मेथड है, द मेथड ऑफ नॉमेनकल्चर ऑफ द कार्बनिक कंपाउंड दैट कैन बी डन बाय द स्पेसिफिक मेथड्स। इसमें पहला है द लार्जेस्ट स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स इज जनरली आइडेंटिफाई फर्स्ट। सबसे जो लार्जेस्ट कार्बनिक एटम है उसको आइडेंटिफाई फर्स्ट कीजिए।
उसके बाद देन अल्केन रूट नेम इज सिलेक्टेड। जो हाइड्रोकार्बनिक है, जैसे एक कार्बन है तो मीथेन कहेंगे, 2 कार्बन है तो इथेन कहेंगे, 3 है तो प्रोपेन कहेंगे, 4 है तो सॉरी 3 है तो प्रोपेन कहेंगे, 4 है तो ब्यूटेन कहेंगे, 5 है तो पेंटेन कहेंगे, 6 है तो हेक्सेन कहेंगे, 7 है तो हेप्टेन कहेंगे, 8 है तो ऑक्टेन कहेंगे, 9 है तो नॉनेन कहेंगे और 10 है तो डेकेन कहेंगे। ऐसे अलग अलग नेमिंग कन्वर्जेशन हम उसके अंदर रिप्रेजेंटेड करते हैं। सो इन केस ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर अगर आप रिप्रेजेंटेट करते हैं तो वो इंडिकेट करता है कि नेम ऑफ कंपाउंड क्या है और उसका प्रीफिक्स सफिक्स आप उसको कैसे इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तो वो आपका फंक्शनल ग्रुप को इंप्लीमेंटेशन करता है। जैसे यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है, इस टेबल के अंदर हम डिस्कशन करते हैं कि टेबल क्या है। जिसे देखो पहला दिया है हालो अल्केन, इसमें प्रीफिक्स जो होगा हालो अल्केन ग्रुप जो है, हेलोजेनिक ग्रुप जिसको हम कहते हैं, हेलोजेनिक ग्रुप के अंदर क्लोरीन है या ब्रोमीन का हम स्पेसिफिकली फॉर्मेशन यूज करते हैं, तो यहाँ पे दिया है तो उसका जो प्रीफिक्स होगा हेलोजेनिक, अगर आप ग्रुप यूज करते हैं अल्केन के अंदर तो क्लोरो या ब्रोमो का आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो ये फिगर्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये जो मैं पहला ये फिगर हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके बारे में हम समझा रहे हैं इस फिगर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो तो आप उसको क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। 3 कार्बन हो तो आप उसको क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। अब तीनों कार्बन के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड का जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये राइट हैंड साइड के हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्लोरीन दिख रहा है। राइट हैंड साइड के हाइड्रोजन की जगह पे क्या दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, यानी कि क्लोरीन एज अ हेलोजेनिक ग्रुप आप इस हाइड्रोकार्बनिक सब्सटेंसेस के साथ ऐड कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को आप प्रोपेन कहते हैं और इसके साथ हेलोजेनिक ग्रुप लगाया है, तो हेलोजेनिक ग्रुप में 2 सब्सटेंस आते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन, तो आपको क्लोरो या ब्रोमो कहना पड़ेगा। तो क्लोरो प्रोपेन आप इसको पढ़ेंगे, अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमो प्रोपेन इसको आप पढ़ सकते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है नीचे ब्रोमो प्रोपेन, बीआर दिया है तो ब्रोमो प्रोपेन आप इसको कह सकते हैं। अब मान लीजिए अल्कोहल ग्रुप है, ओएल सफिक्स आता है, अल्कोहल यानी कि लास्ट में OH सफिक्स आपको यूज करना है। अल्कोहलिक ग्रुप यानी कि डैश OH, आगे मैंने आपको समझाया, तो उसका सफिक्स OL आएगा। मान लीजिए 3 कार्बन है तो प्रोपेन, पीछे OH लग गया, एक हाइड्रोजन रिमूव करके आप फंक्शनल ग्रुप को ऐड करेंगे, पहले भी समझाया। लास्ट में जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को आप रिमूव करेंगे और उसके साथ जो नया फंक्शनल ग्रुप है आप उसको ऐड करेंगे और उसके साथ उसका नेमिंग कन्वर्जेशन आपको पढ़ना होगा। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन और पीछे अल्कोहलिक ग्रुप है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, पीछे OL सफिक्स आएगा। अगर एल्डिहाइड सब्सटेंसेस है, डबल बॉन्ड के साथ आप जुड़ रहे हैं, है ना, तो पीछे AL सफिक्स आएगा तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। कीटोनिक सब्सटेंस है तो पीछे सफिक्स OA नहीं आएगा तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो प्रोपेनोइक एसिड ओइक एसिड आएगा। अल्कीन्स है तो ENE सफिक्स में प्रोपिन बन जाएगा। तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस को आप इंप्लीमेंटेशन करके अलग अलग नेमिंग कन्वर्जेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इफ द अगर हम देखें कि जो नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज शुड बी गिवन बाय इट्स सफिक्स एंड प्रीफिक्स, जो फंक्शनल ग्रुप का वोवेल AEIOU होता है उसके हिसाब से हम उसको इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो पीछे जो सफिक्स जो यूज होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहे हैं उस फंक्शनल ग्रुप के साथ उसका नेमिंग कन्वर्जेशन जो है वहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसमें भी अगर आप देखें तो अलग अलग उसके आइसोमर्स बनते हैं। मिथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना होता है, ब्रोमोप्रोपेन अगर मैंने दिया 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोब्यूटेन है या मिथेनॉल है, पेंटेन 2O1E है, तो कैसे आप उसको लिख सकते हैं, तो पूरा नेमिंग कन्वर्जेशन आप उसके हिसाब से पढ़ सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कशन करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के बारे में। देखो बहुत तरह के केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन के प्रॉपर्टीज को रिएक्शंस हम कहते हैं, जिसमें कंबंशन रिएक्शन आता है, ऑक्सीडेशन आता है, एडिशन आता है, उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन आता है। ये सारे रिएक्शन देखो ऑलरेडी आपने पहले भी इस चैप्टर्स जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें मैंने भी पहले आपको समझाया था कि कंबंशन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन रिएक्शन क्या है, उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, कैसे आप उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। पहले हम डिस्कशन करते हैं कंबंशन के बारे में, ठीक है। कंबंशन रिएक्शन क्या है, तो कंबंशन इज अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, ओके, एयर के प्रेजेंस में आप उसको हीट करते हैं। सो ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस कार्बन विच इज प्रेजेंट इन ऑल द एल्ट्रोप्स विच फॉर्म्स अंडरगोज फॉर द कंबंशन प्रोसेस इन द एयर एंड विच क्रिएट द कार्बन डाइऑक्साइड विद रिलीज हीट एंड लाइट। आपको दिख रहा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 रिलीज करता है। Almost all the carbonic compounds also release the large amount of heat and light while it should be burned.
तो अगर आप देखिए मीथेन है, दूसरा एग्जांपल आपको दिख रहा है CH4 मीथेन प्लस O2, इनका अगर आप रिएक्शंस करते हैं तो CO2 प्लस 2H2 पर हीट एंड लाइट एनर्जी वहाँ पे जनरेटेड होती है। तीसरा जो है CH3 CH2OH जिसको आप इथेनोइक एसिड कहते हैं, सॉरी OH है तो आप इसको इथेनॉल कहोगे, इथेनॉल प्लस O2 अगर आप देखिए तो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और लाइट को जनरेट करता है। तो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लैम वाइल unsaturated hydrocarbons that gives the yellow flames and release the black smoke। ये कंबंशन रिएक्शंस के अंदर आप उसको देख सकते हैं। तो ये कंबंशन रिएक्शंस का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे होता है जो मैंने यहाँ पे आपको अभी समझाया है इस फॉर्मेशन में। अभी क्या होता है कि जैसे कंबंशन रिएक्शंस के बाद जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉल एंड पेट्रोलियम। देखिए ये कॉल एंड पेट्रोलियम्स हैव बीन फॉर्म from the biomass which has been subjected to the various biological and geological process। ये हमें पता है। coal is generally remains of trees forms and there should be plants and lived the millions of years ago, they were crushed into the earth and earthquakes and the volcanoes equations they were be pressed down and layers of earth rock and slowly it should be down into the coal। उसके साथ साथ जो ऑयल और गैसेज है ऑल्सो रिमेन्स मिलियंस ऑफ द टाइनी प्लांट्स एनिमल्स लिव्ड इनटू द सी व्हेन दे डाइड देयर बॉडीज सैंक एंड देम ऑयल एंड गैस अंडर द हाई प्रेशर दे वर बीइंग सब्जेक्टेड टू द मीनवाइल द स्लिट्स वाज स्लोली कंप्रेस्ड इनटू द रॉक्स। सो दिस ऑल आर द वेयर फॉर्म एट द प्रोसेस ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। ये ऑलरेडी आपको पहले से भी पता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में मैं डिस्कशन करते हैं। देखिए ये ऑलरेडी आपको 9th में भी पढ़ा है, आपने पहले भी पढ़ा है केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन क्या होता है। अ प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज नॉन एज एन ऑक्सीडेशन। अ प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज नॉन एज अ ऑक्सीडेशन। सब्सटेंस विच आर कैपेबल फॉर एडिंग ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। दैट इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एक फॉर्मेशन दिया है CH3 CH2OH जिसको हम इथेनॉल कहते हैं। तो अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडेशन कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कार्बन कंपाउंड्स कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज, कार्बन के कंपाउंड को हम इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कि कंबंशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कंबंशन क्या एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही है। जबकि अल्काइन पोटेशियम परमैंगनेट हो या एसिडिफिक पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, ऑक्साइड्स हो, इथेनॉल और एसिटिक एसिड हो, ये अलग अलग फॉर्मेशन उसके बनते हैं। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है कि CH3 CH2OH जिसको आप इथेनॉल कहोगे, उसके अंदर अल्काइन पोटेशियम परमैंगनेट प्लस हीट और उसके अंदर आप देखो तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्साइड का फॉर्मेशन दिया है। तो उसमें से आपको CH3 COOH बनता है जिसको एसिटिक एसिड या तो इथेनोइक एसिड भी आप कह सकते हो। 2 कार्बन का फॉर्मेशन है इसलिए इसको इथेन कहेंगे, तो इथेनोइक एसिड भी आप बना सकते हो। उसी तरह मान लीजिए प्रोपेनॉल होता CH3 CH2 एक और CH2OH अगर आप ऐड कर देते हैं तो CH3 के बाद CH2 COOH जिसको आप प्रोपेनोइक एसिड कह सकते हैं। तो ये पूरा फॉर्मेशन जो है ऑक्सीडाइजेशन के फॉर्मेशन में आप उसका यूज कर सकते हैं। तीसरा है जिसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो जो कैटलिस्ट यूज होता है, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ विच रिएक्शन इज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द हायर रेट एंड रिमेन्स दैट शुड बी अनअफेक्टेड, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो एडिशन रिएक्शंस के अंदर इन रिएक्शन इन विच अनदर मॉलिक्यूल इज एडेड टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉन एज एडिशन रिएक्शन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर दूसरा आप किसी भी एक मॉलिक्यूल को ऐड करके नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। या दूसरे फॉर्मेशन में हम समझे तो इन रिएक्शन इन विच 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दैट ऐड द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच लाइक प्लैटिनम है और उसके अलावा निकल है दैट गिव द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जहाँ पे आपको एक नीचे फिगर दिख रही है यहाँ पे R' ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अभी डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये अल्कीन हो गया, ENE सफिक्स हो गया। और निकल कैटलिस्ट में आप देखिए तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ रिलीज हो रहा है तो इसको आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ये अल्केन हो जाएगा ANE, यानी कि ENE सफिक्स यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्टेड हो जाता है। तो ये जो रिएक्शंस होता है इस रिएक्शन के अंदर कॉमनली जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है
हाइड्रोजनेशन प्रोसेस या वेजिटेबल ऑयल्स जो है वो निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम उसका यूज़ करते हैं। वेजिटेबल ऑयल दैट पोजेसेस अ वेरी लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स वाइल एनिमल फैट्स पोजेसेस द सैचुरेटेड कार्बन चेन्स। तो जो ये वेजिटेबल ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड कार्बन चेन को कंटेन करता है, जबकि एनिमल फैट जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कंटेन करता है। तो एनिमल फैट्स जनरली कंटेन अ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच कैन बी वेरी हार्मफुल टू बी हेल्थ, वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल भी हो सकता है। चलिए, तो थर्ड हो गया। फोर्थ जो है उसको हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या है कि रिएक्शन in which the substitution of one atom or a group of atom in an organic compound take place another atom or group of atom, that is called substitution reaction। तो एक एटम की जगह पे दूसरा एटम उसको रिमूव करके अगर उसकी जगह पे ऐड हो जाता है तो आप उसको क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक सब्सटेंसेस है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक सब्सटेंसेस मोस्टली अनरिएक्टिव होते हैं कंपैरिजन टू द प्रेजेंस ऑफ हीट और मोस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो जो क्लोरीनेशंस है या जो हाइड्रोकार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं दैट टेक प्लेस इनटू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या जो क्लोरीन कैन बी रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन। तो यहाँ जैसे मीथेन है, CH4 आपको दिए एग्जांपल में, CH4 मीथेन प्लस क्लोरीन Cl2, इस सनलाइट के प्रेजेंस में अगर आप उसका रिएक्शन करेंगे तो CH3Cl, जिसको क्या कहेंगे? क्लोरोमीथेन कहेंगे। CH3Cl को क्या कहेंगे? क्लोरोमीथेन कहेंगे, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ पे जनरेटेड होता है। सो नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शंस आर फॉर्म्ड इनटू द हायर होमोलॉजियस अल्केन्स सीरीज यहाँ पे जनरेटेड हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा दो अलग अलग कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको समझा, जिसमें एक इथेनॉल है और एक इथेनोइक एसिड है। ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड्स के बारे में। हम पहले इथेनॉल के बारे में समझते हैं। इथेनॉल यानी कि उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको इजीली याद रहेगा कि इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H5OH। ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था, C2H5OH, ये इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। और इथेनोइक एसिड का जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाता हूँ। अब इथेनॉल की यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज दी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और उसके यूजेस क्या है, ये हमें पता होना चाहिए इथेनॉल का। इथेनॉल यानी कि C2H5OH, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। प्योर इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। प्योर अगर इथेनॉल है तो वो कलरलेस सब्सटेंस होगा, लिक्विड सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे, और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 156 केल्विन होता है, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 351 केल्विन होता है। फ्रीजिंग पॉइंट 156 केल्विन, और जबकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 351 केल्विन के आसपास होता है। इट इज सॉल्युबल इनटू द वाटर, वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल है। इट इज अ गुड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के फॉर्म में काम करता है। जैसे वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वैसे इथेनॉल जो है वो भी सॉल्वेंट के फॉर्म में काम करता है। इथेनॉल का यूज क्या होता है? हम इथेनॉल का यूज क्या कर सकते हैं? देखिए, जनरली इथेनॉल जो होता है वो यूज्ड होता है इंडस्ट्रीज के अंदर एज अ सॉल्वेंट, और मेडिसिन के अंदर जैसे आयोडीन्स का फॉर्मेशन है, कफ सिरप है, या फिर जो मैनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसके अंदर इसका यूज होता है। It is also used in the preparation of liquors, varnish, fragrant substances like perfumes. It is also used into the antiseptic. It is used to prepare the spirit बनाने में भी इसका यूज होता है। अभी इसके कुछ रिएक्शंस दिए हैं आपको। अभी इसको हम केमिकल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, जो रिएक्शंस है ना उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। पहला जो रिएक्शंस दिया है वो अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिएक्शंस फॉर्मेशन जो अल्कोहलिक ग्रुप है, CH2OH ग्रुप है यहाँ पे, जिसको सोडियम मेटल्स भी आप कह सकते हैं, सोडियम के साथ। तो रिएक्शन जब आप OH ग्रुप के साथ अल्कोहलिक ग्रुप के साथ अगर इथेनॉल ऑफ सोडियम मेटल के आप पोजेसिस करते हैं तो सोडियम इथोक्साइड बनता है। CH3COOH को आप क्या कहोगे? इथेनॉल कहोगे। इथेनॉल प्लस Na को आप सोडियम कहोगे। सोडियम प्लस इथेनॉल सोडियम इथोक्साइड यहाँ पे बनाता है। तो ये जो अल्कोहल रिएक्ट होता है सोडियम के साथ, दैट लीडिंग टू द हाइड्रोजन जो इथेनॉल से अदर प्रोडक्ट्स में सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिलीज करता है। उसके साथ साथ जो रिएक्शन दूसरा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वो जनरली फॉर्म करेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसको आप इथीन कहेंगे। ENE सफिक्स होता है, इथीन होता है, और ये इथेनॉल है CH2OH। इथेनॉल को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इथीन बनता है, प्लस वाटर यहाँ पे रिलीज होता है, जिसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे दिया कि अल्कोहल क्यों अफेक्ट करता है लिविंग बींग्स को, हाउ इट शुड बी अफेक्ट।
देखिए, सो व्हेन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल अगर आप कंज्यूम करते हैं तो इट टेंड्स टू बी स्लो डाउन योर मेटाबॉलिक प्रोसेस, हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसको कम करता है। मोरेओवर अगर आप इट डिप्रेस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस को डिप्रेस करता है, इट दिस रिजल्ट्स लैक ऑफ द कोऑर्डिनेशंस, मेंटल कंफ्यूजन्स, डफनेस, लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहिबिटरी, फाइनली इंडिविजुअल बिकम अनकॉन्शियस और वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिस हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ इथेनॉल अगर आप देखिए कि इनटेक ऑफ मिथेनॉल, इथेनॉल की जगह आप मिथेनॉल यूज करते हो तो इट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी कैन कॉज अ डेथ because of the methanol is oxidized into the methanol into the liver, it generally harm to our body. So consumption of alcohol it should be very dangerous to the living being. तो ये हमारे नर्व्स को कॉज करता है, डेथ हो सकती है, ब्लाइंडनेस आ सकता है, ऑप्टिक नर्व इफेक्ट हो सकता है, सो इट शुड बी अ वेरी हार्मफुल टू द लिविंग बीइंग। ठीक है, अल्कोहल एज अ फ्यूल, अभी हम इसका काफ़ी जान रहे हैं कि एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के काम में करता है। तो सुगर कैन के जो प्लांट्स होते हैं आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ द सनलाइट इनटू द केमिकल एनर्जी। सुगर कैन के जो प्लांट्स होते हैं इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट mediums to convert the sunlight into the chemical energy. तो sugarcane juice is used to prepare the molasses which is fermentation give alcohol जिसको ethanol कहते हैं. Some countries now use alcohol जिसको ethanol कहते हैं use as an additive into the is petrol since it is a cleaner fuel which gives the rays of only carbon dioxide and water burning sufficient air into the oxygen. So most of the country recently that should be used as a part of the fuel of alcohol. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट द इथेनोइक एसिड। ना इथेनोइक एसिड की सबसे पहले प्रॉपर्टीज, इथेनोइक एसिड को आप CH3COOH कहोगे, उसका केमिकल नेम भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। इथेनोइक एसिड को आप कहेंगे CH3COOH, ये उसका मॉलिक्यूलर नेम फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसको आप क्या कहोगे, इथेनोइक एसिड कहोगे। अब इथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? इथेनोइक एसिड एक कलरलेस लिक्विड सब्सटेंसेस होता है लाइक ऑर्डर जो स्मेल करता है विनेगर के फॉर्मेशंस में। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड जो 391 केल्विन के आसपास होता है। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड को अगर आप वाटर के अंदर ऐड करते हो तो आप उसको विनेगर भी कह सकते हो। इथेनोइक एसिड वीक एसिड है लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्म में आयोनाइज हो जाता है, कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग एसिडिक फॉर्म बनाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 290 केल्विन के आसपास होता है। तो ड्यूरिंग विंटर कोल्ड क्लाइमेट के अंदर इसको आप एसिटिक एसिड, जिलेटिकल एसिटिक एसिड के फॉर्म में भी आप काम कर सकते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है जिसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑब्वियसली जो इसके एसिडिक नेचर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके हिसाब से आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्योरली फॉर्म ऑफ द एसिटिक एसिड। अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको दी होगी, यहाँ पे ये हम उसकी डिस्कशन करते हैं। अभी इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस आता है और एक न्यूट्रलाइजेशन आता है जिसके बारे में हम समझते हैं। एक क्वेश्चन खास एग्जाम में आता है एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। जो रिएक्शन ऑफ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो दिया है CH3COOH का फॉर्मेशन और अल्कोहल के प्रेजेंस में अगर आप इस एसिड को कैटलिस्ट फॉर्म स्टर करते हैं तो वाटर जनरेट होता है, स्टर एंड वाटर यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। इथेनोइक एसिड को अल्कोहल के साथ ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको ईस्टर प्लस वाटर वहाँ पे रिलीज होता है। ईस्टर जो है इट हैविंग अ वेरी स्वीट स्मेल, काफ़ी स्वीट स्मेल होता है, इज अ पार्ट ऑफ द स्वीट स्मेलिंग लिक्विड और जनरली परफ्यूम्स बनाने में इसका हम यूज़ करते हैं। रिएक्शन ऑफ ईस्टर, ईस्टर का जो रिएक्शंस होता है वो अल्कली फॉर्म करता है अल्कोहल और थोड़ा सा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को, जिसको हम सैपोनिफिकेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। ईस्टर का रिएक्शन अगर आप अल्कली के साथ करते हैं अल्कोहल ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो वो प्रोसेस को आप सैपोनिफिकेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। या फिर जो इथाइल एसीटेट है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके आप इथेनॉल प्लस सोडियम एसीटेट को भी आप रिकवर कर सकते हैं। ये पूरा एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दिया है। दूसरा रिएक्शन जो था इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मिनरल्स के अंदर यहाँ पे HCl है या HNO3 है, H2SO4 है, ऐसे जो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं वो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करता है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इथेनोइक एसिड, सोडियम इथेनेट और वाटर वहाँ पे रिलीजेस करता है। तो ये पूरा रिएक्शन जो उसके अंदर होता है। तीसरा रिएक्शन जो दिया है
वो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या कार्बोनेट के साथ है। तो इथेनोइक एसिड का रिएक्शन अगर आप कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट के साथ करेंगे तो इट ऑलवेज भी जनरेट सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो एग्जांपल दिया है आपको, आप देखिए सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन जनरेटेड करता है। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं, वेयर वी कैन बी यूज द इथेनोइक एसिड। जनरली इट इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ विनेगर which is used to add enough sour taste to the food items, as a solvent into the laboratory के अंदर यूज़ करते हैं, to use to prepare the lead pigment में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, पिगमेंट बनाने के अंदर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। So this is the one of the important formation. Now next is one of the important topic are there soap and detergent. Soap और detergent के बारे में हमें डिस्कशन करना, we have to discussion about the soap and detergent. This is the last topic for your the textbook of this question. Okay, now first we're discussing about what is called soap and detergent, then we are moving ahead. Now because soap is a sodium or potassium salt of a long chain of the carboxylic acid or it is also be fatty acid. सॉप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स को कंसिस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सॉप के जो फॉर्मेशन होते हैं दो पार्ट को कंसिस्ट करते हैं। एक पार्ट होता है जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बनिक चेन को कंसिस्ट करता है और दूसरा हाइड्रोफोबिक एंड होता है जिसको आप नॉन पोलर टेल भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉन पोलर टेल। अनदर पार्ट जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पोलर पार्ट होता है, इसको आप पोलर हेड भी कह सकते हो, जिसको हाइड्रोपोलिक एंड भी आप कह सकते हो। तो अगर आप शॉप के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें सोडियम कार्बोजिट डैश COONA को आप हाइड्रोकार्बन के साथ लिंक कर सकते हैं, या डिटर्जेंट के अंदर अगर आप देखिए तो सल्फर का डैश SO3Na को आप रिएक्ट कर सकते हैं उसके अंदर एज अ पार्ट ऑफ द रिएक्शन डैश COONA और डैश SO3Na का फॉर्मेशन आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया कि फॉर्मेशंस ऑफ माइसिल्स जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉप आर a sodium or potassium salt of a long chain carboxylic acid. सोडियम और पोटेशियम का लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का बना हुआ रहता है। टू एंड ऑफ शॉप मॉलिक्यूल्स पोजेसेस द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वन एंड इज द हाइड्रोफिलिक एंड और दूसरा जो होता है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, व्हाइल द अदर एंड इज हाइड्रोफोलिक डिसॉल्व इनटू द हाइड्रोकार्बन्स। तो जैसे शॉप का सरफेस इस वाटर के साथ जुड़ता है, हाइड्रोफोलिक टेल शॉप का होता है विल नॉट बी सॉल्युबल इनटू द वाटर एंड देन शॉप विल अलाइन अलोंग विद द सरफेस ऑफ वाटर हैविंग द आयोनिक एंड हाइड्रोफिलिक टेल प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ द वाटर। तो inside of water the molecules have a specific particular orientations that keeps the hydrocolate portions out, वो बाहर की तरफ उसको निकालते हैं। तो जिसके वजह से शॉप माइसेल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट हैविंग अपवर्ड्स फॉर्मेशंस। तो ये जो केमिकल सब्सटेंसेस जो हम यूज़ करते हैं जो रिमूव करता है डर्ट को या स्टॉक को, जो सरफेसेस होते हैं ऑब्जेक्ट के, जिसको आप डिटर्जेंट भी कहते हो। केमिकली जो डिटर्जेंट होता है इट इज़ अ सोडियम सॉल्ट और सल्फोनिक एसिड्स जो एमोनियम सॉल्ट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब इसके अंदर भी दो एंड होते हैं, एक SO3 नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है। तो चार्ज एंड ऑफ दिस कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल पार्टिसिपेट्स इनटू द कैल्शियम ऑफ मैग्नीशियम आयंस हार्ड वाटर विच एग्जिस्ट अ सॉल्युबल इनटू द सॉल्ट, so they are effective also into the very hard water, so they generally generate this type of the formation. So detergent are usually used to make formation of shampoos and other products by the cleaning of clothes, उसके लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो डिटर्जेंट जो है हम उसके ये जो पूरा फॉर्मेशन आपको दिया है कि जो मॉलिक्यूल्स जैसे हाइड्रोफोलिक एंड्स जो है दिया है, हाइड्रोफोलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड कैसे जुड़ते हैं और कैसे उसका पूरा फॉर्मेशन डर्ट जो है मिसल्स के थ्रू वो बाहर निकलता है, पूरा इसके अंदर आपको दिया हुआ है, दैट इज अ एंटर फॉर्मेशन। तो डिटर्जेंट जो है, डिटर्जेंट इज स्लाइटली मोर इफेक्टिव and shop that react with the Ca+2 or Mg+2 ions which is present into the hard water and that gives the participants जो उस तरह के dirt cleaning में use होता है। So that is generally a structure of soap and detergent. So ये पूरा टॉपिक इस चैप्टर का यहाँ पे ओवर होता है। आई होप कि वॉट एवर वी डिस्कसिंग टूडे अबाउट द सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक सब्सटेंसेज, how we can be prepare the ethanol or ethanoic acid, what is its properties, what is its use, chemical properties, physical properties, as well as how we can be implemented soap and detergent. So I hope कि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, I just requested you keep updating your knowledge by using different mediums of the learnings. Also, whatever the question that is given into the exercise, just write the answers in the notebook with your own words. Keep updating, keep revising, keep studying. And once again, stay home and stay safe, student. Take care. We'll meet tomorrow with another topic of a science 10. Take care, and we'll be meeting tomorrow. Then, bye.